Hello students, in this video I am going to take up the remaining portion of chapter 3, that is gear and inclined plane. So first we will take up gear. So gear is basically a toothed wheel and all these teeth are drawn intentionally. So the tooth of a gear is a lever of class 1. 1 is missing, so I have written 1 here. Now we will see look actually how a gear looks like. So there are three figures A, B and C. In figure A you can see that these are the teeth of a gear. You can see that the size of both gear looks to be same, whereas in gear uh, picture B the size of gear is A is greater than B, and in C size of B is greater than A. Now A is called as driving gear. A is called as driving gear and B is called as driven gear. Here also this is your driving and this is your driving and driven. So I hope you will be clear up till now. Now number of teeth in gear A is NA and number of teeth in gear B is NB. So here NA is equals to NB. In this particular condition NA is greater than NB, and in this particular condition NA is less than NB. Now one more thing that you will easily support me, that number of teeth on a particular gear are proportional to the circumference circumference, and circumference जो proportional होता है वो radius के होता है. So if I wish to talk, NA is proportional to RA and NB is proportional to RB. I hope you will be understanding this particular fact. So जब हम इनका रेडियस निकालेंगे सो NA अपॉन NB आएगा, सो वो RA अपॉन RB के बराबर हो जाएगा. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन. नाउ अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ रोटेशंस की. सो सपोज स्मॉल NA इज द नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ A and small NB is the number of rotation of B. So keep all these representations in your mind. Now अगर जो मैं बात करूँ गियर A की, now if I again talk about गियर A, सो आप देख सकते हैं अगर जो गियर A में मैं मान लूँ कि 100 टीथ्स हैं हमारे एंड गियर B में हमारे 20 टीथ्स हैं. सो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस बड़े वाले गियर के 20 टीथ्स क्रॉस करेंगे तो ये गियर के भी 20 टीथ्स क्रॉस कर जाएंगे. इसका मतलब इसका एक रोटेशन हो जाएगा, अगले 100 में इसका दूसरा रोटेशन हो जाएगा. सो विच मीन्स 100 divided by 20 will be, you get 5, which means for one rotation of this wheel, driven wheel rotates 5 times. So which means the speed of this particular gear is more as compared to this gear A. So I hope it is clear to you. So अभी यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई. आप देख सकते हैं स्पीड इस गियर की ज़्यादा है और रेडियस इस गियर का कम है. इसका मतलब जो अभी मैंने NA लिखा था, NA is inversely proportional to RA. Again I hope you understand this fact. मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ. एंड पहले मैं लिख लेता हूँ NB proportional now I will write all the things in this particular page, you can see clearly. हाँ, तो अभी तक हमने देखा कि जब हम बात कर रहे थे एक जो गियर A में हमारा था वो NA हमारा कितना था 100, गियर B की बात करें सो NB हमारा कितना था 20. सो हमने देखा कि जो NA के एक रोटेशन के लिए NB हमारा कितने टाइम्स रोटेट करता था 5 टाइम्स. सो अगर जो मैं स्मॉल NA की वैल्यू 1 मानूँ सो स्मॉल NB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5. ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि NA is the number of rotations of A and B is the number of rotations of 5 of B. So इसका मतलब ये हुआ कि अब
जो रेडियस था वो हमारा गियर बी का कम हुआ करता था। तो जिस गियर का रेडियस कम है उसका स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ ये जो NA है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। I hope you will be comfortable with this point. Again, NB is inversely proportional to RB. Now, अगर जो हम NA upon NB calculate करने जाएंगे, so take the screenshot of this so that you can understand. Now, I will erase it all. I'm giving you some time to take the screenshot. Now I am erasing it. So now what we have to calculate is Na upon Nb, small na upon Nb. So small na was equal to 1 upon Ra and it was equal to 1 upon Rb. So Rb हमारा numerator में जाएगा and Ra. So you get a relation Rb upon Ra. Now, okay, so this is the required relation Na upon Nb is equals to Ra upon Rb. This is an again important relationship. So initially, so now we have two relationships, that is Na upon Nb is equals to Ra upon Rb, and our second relationship is small na upon small nb is equals to Rb upon Ra. Now you have to this R, I will delete. This is your Rp. Okay. Now it is clear. From these two relation we can derive another relation. अगर जो मैं इन दोनों चीज़ों को रिवर्स कर दूँ, so Na अपॉन NB इज इक्वल्स टू, इसको मैं न्यूमिनेटर में ले जा रहा हूँ, सो NB भी हमारा न्यूमिनेटर में जाएगा. सो RA अपॉन RB, RA को मैं I have taken RA into the numerator and RB into the denominator. So NB हमारा न्यूमिनेटर में जाएगा, so NB upon Na. So this is the all important relation in the gear system. Again I will tell the name what actually Na means. Na means number of teeths in gear A, NB means number of teeths in gear B, Ra is the radius of gear A and Rb is the radius of gear B. NB is the radius of NB is the number of rotations of gear B and Na is the number of rotation of gear A. So now now I hope all of you are clear about what actually is meant by Na, capital Na, small na and other things. So now I will again tell you some interesting thing. So इसका मतलब ये हुआ था जब इसका हमारा 1 रोटेशन हो रहा था, so it was completing 5 रोटेशन. इसका मतलब अगर जो गियर A का हमारा that is ड्राइविंग गियर का नंबर ऑफ टीथ्स ज़्यादा है, मतलब वो बड़ा गियर है, हमारा रेडियस ज़्यादा है उसका, सो वो जो ड्रिवन गियर है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करता है. ओके, सो विच मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, गेन ऑफ स्पीड मिल रहा है. अगर जो मैं सेकंड केस की बात करूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ड्राइवर गियर है उसमें नंबर ऑफ रोटेशंस कम है. सो इसका मतलब ड्राइवर गियर को ज़्यादा बार हमें रोटेट करना पड़ेगा. अगेन इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ 100 एंड सो अगर जो यहाँ पे 100 है यहाँ पे 20 हैं, तो इसका मतलब इसके रोटेशंस 5 हो जाएंगे एंड इसके रोटेशन हमारे 1 रहेंगे. सो इसका मतलब स्पीड ऑफ जो हमारा ड्रिवन गियर है उसका कम होता जा रहा है. तो जब स्पीड कम होता है तो फोर्स इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज यू हैव अ फार्मूला P इज इक्वल्स टू F इंटू वी, विच मीन्स पावर जो है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड वेलोसिटी का. देखेंगे अभी कैसे ये चेंजेस होते हैं. सपोज यू हैव अ फार्मूला ऑफ P is equals to F into V. V is your velocity and F is the force and P is the power. So आप जानते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का पावर जो होता है वो फिक्स रहता है. सपोज पावर इज़ 100, ओके, एंड अगर जो मैं फर्स्ट कंडीशन बी की बात करूं तो मान लिया मैंने जो सेकंड गियर था उसका स्पीड कितना था, 20 था. जो हमारा ड्रिवन गियर था उसका स्पीड कितना था, 20 था.
F. So F is equals to 100 upon 20. So F is equals to 5 न्यूटन. अब ज़रा मैं सेकेंड केस कंसिडर करता हूँ. पावर अगेन हमारा 100 रहेगा. अब मैं आता हूँ कंडीशन सी में. कंडीशन सी में जो हमारा ड्रिवन गियर था वो बड़ा था. सो इसका मतलब उसका स्पीड कम होगा. तो स्पीड में अज्यूम कर सकता हूँ उसका 5 था. सो फोर्स इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 5. सो फोर्स विल बी इक्वल टू 20. अब देख सकते हैं जब स्पीड हमारा यहाँ पे 20 था तो फोर्स हमारा कितना आया है 5. एंड जब स्पीड हमारा 5 है तो फोर्स कितना आया है 20. नाउ इसका ये मतलब क्लियर हो गया कि जब भी हमारा वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो फोर्स हमारा क्या होता है अपने आप रिड्यूस हो जाता है, जस्ट बिकॉज पावर इज़ फिक्स्ड. सो इसका मतलब ये हो गया कि ये जब गियर हमारा when this gear operates it will increase the speed, it will produce velocity gain. इस condition में आपको क्या मिलता है velocity gain. And when we talk about this particular condition we get force gain. Force gain. Now proceeding forward we have some ratios. First is your gear ratio. So gear ratio is given by Na upon Nb, where Na is the number of teeth in gear A and Nb is the number of teeth in gear B. Now proceeding velocity ratio. Velocity ratio is number of rotation of driving gear and number of rotation in driven gear. सो अब देख सकते हैं अगेन यहाँ से थोड़ा मुझे एक्सप्लेन आई थिंक करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो नंबर ऑफ़ रोटेशंस इन ड्राइविंग गियर, सो ड्राइविंग गियर के जो नंबर ऑफ़ रोटेशंस होते हैं वो किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ़ टीथ्स के. सो इसका मतलब जो ड्राइविंग गियर का जो सो ड्राइविंग गियर वॉज उसमें जो हमारे नंबर ऑफ़ टीथ्स थे वो एन ए थे, यहाँ पे एन बी था. सो एन बी हमारा रिवर्स होकर न्यूमिनेटर में, एन ए हमारा डिनोमिनेटर में. सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए. कीप ऑल दिस फैक्ट्स इन माइंड कि वेलोसिटी रेशियो ये हमारा एन बी अपॉन एन ए कैसे हो गया, जस्ट बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रोटेशंस एंड नंबर ऑफ टीथ्स. नाउ यूजेस ऑफ गियर, गेन इन टर्क और फोर्स, यही पॉइंट में अभी मैंने एक्सप्लेन करा था, एंड गेन इन स्पीड. अब यू कैन ईजिली कॉम्प्रीहेंड ऑल द फॉर्मूला. सो now having studied about gear, now we will move towards the inclined plane. So it is a simple machine which acts as a force multiplier. This is the definition of the inclined plane written at the top. You can see that. Now basically it is based on the principle that effective value of weight of a body is much less than along the inclined plane. Okay, we will see this point how this actually happens. Now I have inclined plane here. ये एंगल मैंने कितना बोला, दिस एंगल इज 30 डिग्री. ओके, नाउ यहाँ पे सपोज करें कोई वेट रखा है, इंक्लाइंड प्लेन, आई नीड टू ड्रॉ इट बिट बिगर. यहाँ पे आपका कोई वेट है विच इज़ 60 न्यूटन का हमारा वेट है. ओके, ये एंगल हमारा कितना दिया हुआ है 30. आई एम नॉट टेकिंग इट. ओके, सो अगर जो मैं यहाँ निकालूंगा तो ये एंगल भी हमारा 30 हो जाएगा. सो दिस इज 60 cos 30 and this component will be 60 sin 30. सो अब आप देख सकते हैं 60 sin 30, 60 sin 30, sin 30 means 1/2 which means 30. सो अब जब इंक्लाइंड प्लेन पे इस वेट को मैं ऊपर की तरफ लिफ्ट करूँगा तो मुझे कितना फोर्स लगाना होगा, सिर्फ इस 30 न्यूटन के इक्वल. अगर जो मैं इसको डायरेक्टली ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा था देन आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन. बट व्हेन आई वाज लिफ्टिंग दिस पर्टिकुलर लोड ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन, सो इसका जो इफेक्टिव वेट होता है मेरे लिए वो 30 न्यूटन रह जाता है. मतलब इसको लिफ्ट करने के लिए मुझे एफर्ट कितना लगाना होगा, ओनली 30 न्यूटन. सो नाउ आई थिंक यू विल बी you will support my point that जब भी इंक्लाइंड प्लेन को एक किसी वेट को किसी इंक्लाइंड प्लेन पे हम प्लेन पे लिफ्ट करते हैं, सो जो उस वेट का जो उस वेट का जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, जिससे हमें लिफ्ट करने में आसानी रहती है. दिस इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड अ इंक्लाइंड प्लेन.
Now we will see about the mechanical advantage and other things. So mechanical advantage, you know the formula, load upon effort. So अब देख सकते हैं लोड हमने कितना लिफ्ट किया है. लोड जो हमने लिफ्ट किया है वो W न्यूटन को, और लिफ्ट करने के लिए जो एफर्ट लगाया है हमने, एफर्ट किसके इक्वल होगा, W साइन थीटा के इक्वल होगा. जैसा कि मैंने वहाँ बताया था, वहाँ थीटा की वैल्यू 30 थी. सो एफर्ट हमने कितना लगाना पड़ा, W साइन थीटा. तो W विल गेट कैंसिल, MA विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. This length is S and this length is H. So when we calculate sin theta, we get sin theta is equals to H upon S. So जब हम H upon S रखेंगे तो S हमारा रिवर्स होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा. So MA is equals to S upon H. Now velocity ratio is equals to displacement in the effort and displacement in the load. So आप देख सकते हैं effort में जो maximum displacement होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगा, और वो वैल्यू हमारी कितनी है, S है. एंड जो लोड में डिस्प्लेसमेंट होगा, लोड इनिशियली हमारा यहाँ पे कहीं होगा एंड बाद में वो यहाँ पे आएगा. तो लोड का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगा, H के इक्वल होगा. सो S अपॉन H. सो वेलोसिटी रेशियो इज अगेन बिकम्स S अपॉन H. सो दिस इज द about inclined, this is all about inclined plane. So with this I again finish this video, hoping that all of you will be understood, will able to understand all these topics which are discussed in the video. Thank you very much.